کہ نون لیگ کی اس وقت جو حکومت ہونے کی وجہ سے عوام ان کے جلسوں میں آئے. تو جی بہادری جو ہے وہ ادھار لینی ہے. اس پہ اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو ناظرین کی بھی جب کالز ہیں تو میں بتاؤں گا. یہ صاحب کی بہادری سب کے سامنے ہے. مطلب ان کو سالوں سے دوا نہیں مل پا رہی اور وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. مطلب مجھے تو اس کے اوپر بڑا مذاقہ خیز بیان ہے یہ. مطلب یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا، خود سے نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک آدمی خود ساختہ مفرور ہوا ہے، چھپ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے، واپس نہیں آتا. بھائی کی حکومت ہے اس میں نہیں آ رہا. مطلب اب اس سے زیادہ جو ہے وہ میں اس کو کیا کہوں. مطلب یہاں پر مطلب بہادری کا اچھا لفظ لینا ایک یہ بھی شرمانے کی. اچھا ایک اور انہوں نے بات کی ہے، وہ آپ نے ایک محاورہ سننا ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جی ہاں. تو ایک مریم صاحبہ نے ڈانٹ بھی پلائی ہے ہمارے اداروں کو کہ آپ ایسا ماحول کیوں بناتے ہیں کہ میاں صاحب کو بار بار باہر جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک انہوں نے ایک ڈانٹا ہے الٹا ہمارے جو بھی اگر میاں صاحب کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی ہے یا جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا ماحول ہی کیوں بناتے ہیں. میاں صاحب اقتدار کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو سموتھلی اقتدار کرنے دیا جائے، اس کے بعد وہ جو جانے اس کا کام جانے. آپ کون ہوتے ہیں کہ پاناما لیکس آ گئے اور فلاں الزام لگ گیا، حدیبیہ روڈ ڈیل آ بیچ گیا، وہ ڈالے، آ گیا، یہ آ گیا. تو یہ آپ ایسا ایئرپورٹ بیچ ماحول بناتے ڈالے. ہیں جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا ہے، بیمار بھائی ہونا ایئرپورٹ پڑتا ہے، بیچ جانا ڈالے. پڑتا ہے، پلیٹلیٹس کی اونچ نیچ کروانی پڑتی ہے. کچھ چھوٹا کام نہیں ہے ہر بے اس قسم کے بہانے بنانا. تو یہ کافی جان جوکھوں کا کام ان کو کر کے پھر باہر آنا پڑتا ہے. تو اس کا بالکل بھی ایسے جو ڈانٹ ہے یا جو ذمہ آتا ہے وہ ہمارے اداروں کا آتا ہے. نہیں. آپ دیکھیں نا، پارک بیچ ڈالے، روڈیں بیچ دی، ایئرپورٹ بیچ دیے. اب نیوکلیر پلانٹ رہ گیا ہے اور شاید لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بیچنا رہ گیا ہے. تو اب باقی تو سب بیچ چکا. بالکل جہاں صحیح. سے آپ کی معدنیات نکلتی ہے اس کو ٹھیکے پر دیا جا چکا ہے. لوگوں کو تو اصل حقائق کا علم ہی نہیں ہے. جہاں سے گولڈ نکلتا ہے وہ 100 سال کے ٹھیکے پر آسٹریلیا کو دیا جا چکا پہلے. میں نہیں کہہ رہا یہ سب نواز شریف صاحب نے کیا، مطلب جو آتا رہا ہے وہی کرتا رہا، جو آتا رہا ہے. تو جی ہاں، سب نے اپنی مطلب باریاں لگائی ہیں. سجاتی باریاں لگائیں گے. تو یہ سارا جی سلسلہ ہے. لوگوں کو تو ابھی علم ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں کو جی معلوم ہی نہیں ہے. جی ہاں. اور تو اور سوشل یہ میڈیا کی وجہ انصاف سے. کا جی ہاں. کاش کہ یہ ایسے بار بار موقع نہ آئے جاتے. اور 99 میں جب ان کا ایک احتساب شروع ہوا تھا، مشرف صاحب جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ ان سے معاہدہ نہ کرتے، ان کو نہ جانے دیتے، این آر او مشہور زمانہ نہ ہوتا تو آج روز روز کا یہ جو کلکل ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی. اور میاں صاحب جو ہے جو ایک موزے تنگ اور پتہ نہیں کیا نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں اور بہادر بنے ہوئے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں اگر ان کا ٹرائل ہو تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں جب یہ کہیں کہ نہیں یہ ہوگا. حضور یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع، اور قطری خط کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروف نہ ہو. تو یہ تو پاناما کیس، یہ پاناما کے اوپر یہ جو تنخواہ نہ لینے پہ جو انہوں نے ان کو سزا دی گئی، یہ تو ایک سیدھی سیدھی ایک مجرمانہ ان کی عدالتی جو ایک جرم میں تو سمجھتا جی ہوں ہاں. کہ جو اس وقت کی عدالتوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اب ہلکی چھوٹی موٹی سی ایسی سزا دے دینا، یہ بھی قانون دان جو ہے وہ اس میں جو سکم نکالنے والے ہیں وہ پتا ہوتا ہے ان کو کہ ٹھیک ہے سزا تو دی جا رہی ہے لیکن اس میں آگے چل کے اس میں دورس فائدے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ اگر صحیح معنوں میں ٹرائل سزا ہوتا کہاں اور ہوئی اتنے ہے وہ کہہ رہے پاکستان میں؟ سزا ہوئی کہاں نہیں ہوئی ہے؟ ہے، ہوئی نہیں. پاکستان میں سزا ہوئی نہیں. کرپشن میں کبھی سزا ہی نہیں ہوئی. پاکستان میں کرپشن صحیح پہ اگر بات، سزا ہوتی تو یہ سب ہوتا ہی نہ. پاکستان میں صحیح کبھی بات. کرپشن پہ سزا نہیں ہوئی. کرپشن کرنا جی ہاں، سیاستدان اپنا حق سمجھتا ہے. مسائل ہیں بالکل تو. صحیح. اچھا کالر ہے تو لے زرداری لیں. صاحب کا بھی بیان شیئر کروں. ہاں زرداری صاحب کا بھی بسم بیان اللہ شیئر بسم اللہ. کرتا ہوں. ان کا کیوں کہنا نہیں کریں؟ ہے بسم کہ اللہ. عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتا، اسے گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ کا ہے، یو ٹرن لینا عمران خان کی خصلت ہے. یہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیاستدان وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اب زرداری صاحب یقیناً ابھی ان کو بھی پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ سنجرانی صاحب کو جب لانا تھا اور جب زرداری صاحب جو ہے وہ درپے تھے میاں صاحب کی حکومت گرانے کے، تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ان کا کافی میل ملاپ تھا. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان حکومت جب گرائی ہے یا صادق سنجرانی جب پہلی بار سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں
तो उस वक्त जरदारी साहब इमरान खान जो है वो इकट्ठे थे, तो बल्कि बिलावल साहब तो उनको चाचा कह के पुकारते थे, वो चाचा बड़े प्यार से भी, बड़ी तकरीरों में उनके चाचा चाचा के अल्फाज जो है वो मौजूद है हमारे रिकॉर्ड के अंदर। तो बहरहाल वो सियासतदान नहीं समझते, लेकिन हो सकता है कि वो उस पाए के सियासतदान नहीं है इमरान खान। अब तक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ उनको 3 साल इक़्तिदार मिला था, और अगर हो सकता है ज्यादा टाइम मिलता, या उनके जो यारी दोस्तियां जिनकी वजह से वो चुप हैं अभी तक, या जिसकी वजह से वो उनको केसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि उनको जरदारी साहब और उनमें काफी कुर्बत हो जाती और वो नजदीक नजदीक आ जाते। तो इस वक्त जरदारी साहब के पाए तक वो इसीलिए नहीं पहुंचे कि उनका इक़्तिदार 3 साल का है, और जरदारी साहब माशाल्लाह 30 साल से सिंध में तो कम से कम हुक्मरान है ही हैं। तो इस वजह से इमरान खान का अभी वो मेयार आया नहीं बकौल जरदारी साहब। तो इसमें एक कॉल शामिल कर लूं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, जैदी नाम है मेरा। जी जैदी साहब, मेहरबानी। मैं बात कर सकता हूँ किसी नजर साहब? जी 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 जैदी साहब, अब आप प्रोग्राम के अंदर हैं, हम सब बात सुन रहे हैं, टीवी से ना सुने, आप बात करें। टीवी से नहीं सुनना चाहता, मैं टीवी तो सुनता भी नहीं, मैं तो आज की टीवी सुन कर मैं ठीक है जी, प्लीज। जी मैं कुछ कहूँ? जी जी कहिए। प्रोग्राम आपका नजर साहब का, फारूक नजर साहब का, मौसी साहब का, मैं परेशान हूँ कि ये सब एक वन साइड बात क्यों कर रहे हैं। टीवी का इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, बाकी फैसला आप किसके साथ, इमरान खान के साथ है या नवाज शरीफ के साथ है, ये पब्लिक का फैसला है। बिल्कुल लेकिन इनकी पूरी डिस्कशन सुन रहा हूँ काफी देर से, तो यही चल रही है कि इमरान खान के हक में और नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा ठीक है, इनका काम नहीं है, ठीक है। नहीं, आप बैलेंस करें ना, आप बैलेंस करें, आप नवाज शरीफ के हक में बोले ताकि उनकी जो बात की है उसको आप रद्द कर दें। अच्छे के फेवर में नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन टीवी का काम मैं बता रहा हूँ, टीवी काम ये है कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर सर ये न्यूज बुलेटिन नहीं है जैदी साहब, ये न्यूज बुलेटिन में है कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है, नो के बंदे नो ही कहना है। आज नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, वो लंदन में हैं। आज इमरान खान वो जमान पार्क में है, जमान पार्क। उन्होंने न्यूज के चीज और है, और ये डिस्कशन या तजिया जो है ना, ये इसको में सॉरी आप एक साइड का व्यू नहीं दे सकते, व्यू आप दोनों तो का दें। इसीलिए तो सर हमने नंबर लगाए कि आप दूसरी साइड का व्यू देते। हो सकता है हमारे अंदर वो एहलियत ही ना हो दूसरी साइड को देखने की। मैं मेरे दोस्त ने क्लिप भेजा पाकिस्तान से। जी जी, हमारे घर कहाँ जी? लंदन में। बाप कहाँ है? लंदन में। बेटा कहाँ? लंदन में। भाई कहाँ? लंदन में। जी जी। उन्होंने कहा कौन है जी? मैं पाकिस्तान की बेटी। हाँ ना, तो आप भी वन साइडेड बात ही कर रहे हैं आप तो फिर। लेकिन मैं बात करूँ टीवी का जो प्रोग्राम होना चाहिए, वो आपको इंफॉर्मेशन दे कि बेटे कोई व्हाइट एंड ब्लैक, कब आप व्हाइट चूज करते हो या ब्लैक, ये आपकी अपनी है। सही है, नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें टीवी का भी वही किस्म का मजाज है, या इस टॉक शोज का भी, कि जो अखबार में होता है कि जो हेडलाइंस हैं वो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन देनी है। एडिटोरियल जो हैं या कॉलम जो हैं, वो राइटर्स के अपने अपने उनके तजिया हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें। सर जी बोलिए सर, बोलिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल नाज़रीन, नंबर आपके सामने हैं, और वन साइडेड हमने तो लगा नहीं कि वन साइडेड, इसमें हम तो सिर्फ पाकिस्तान की साइड के ऊपर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो साइड में बेहतर हो। और इमरान खान का अभी हम कह रहे थे कि उनको तो 3 साल और मिलते, हो सकता है 6 साल। तो जरदारी साहब और कई आते अब इमरान खान में, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो कई आते उन्होंने में वही हुक्मरानों वाली आते थी, उसमें कोई फर्क नहीं था, वो फरिश्ते नहीं थे वो भी। अब वो कोई किसी ने खुदकुशी की तो उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूं। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नंबर भी हमारे लगाने का मकसद यही है। हम कोशिश यही करते हैं कि बैलेंस रह के चलें। अगर
ज्यादा जराइम, ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी साइड से हो जी रही मैं है तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा ना, उसका हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह ले लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन ख्वाहिश के ऊपर ये तो नहीं अब कि अब फला राग में आप शुरू हो जाए तो वो मुश्किल है। ये तो आज़ादी होनी चाहिए, आपकी भी आज़ादी है। नाज़रीन आप भी आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अब देखें आशिर साहब आते हैं तो आमीन को कोई रोक सकते हैं? जनाब दोनों भाइयों को मेरा बहुत बड़ा सलाम, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। सवाल दोनों भाइयों से सिर्फ एक ही है। जी हुक्म जी। हमने 1947 से आजादी तो ले लिया मुल्क के लिए, अच्छा, आप इन 3 लोगों से कब आजादी लेंगे? नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान। ये मुश्किल है भाई। नाते मेरे भाई, वो आज़ादी आसान थी, ये मुश्किल है भाई। so आप एडमिट करें ना कि they are agents from the other people from outside the country. ठीक है। they हेलो, उन्होंने आपके मुल्क को जगड़ लिया है। ठीक है। एडमिट कर रहे हैं फिर आप लोग, वो आपके आर्मी और जितने भी है वो कुछ नहीं है, आपके जजेस कुछ नहीं है। इन्होंने मुल्क को बंदी कर दी है, आपके नीचे ले आए हैं। दे आर द गैंगस्टर ऑफ द वर्ल्ड, एज द जज सेड, दे आर माफिया। माफिया ने आपको जगड़ लिया है, आप इससे बचेंगे कैसे? ठीक है। कोई सोल्यूशन बताएं आप लोग, और कोई पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान से मदद करते रहे, कहते हैं कि बना इस्लाम के नाम पे, वो आज किधर है? ठीक है। कश्मीर के लिए आपने लड़े, अफगानिस्तान के लिए लड़े, किधर है आप? वो मुसलमान किधर है? मुझे दिखाई देते या कह दें कि यस वी नेम, हमारा नाम मुसलमान हम नहीं है, हम इसको कहीं नहीं लेके जा सकते। गरीबों को मारना चाहते हैं और मार रहे हैं। तो भाई बात आ रही है? जी बात आ गई सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बातों का जवाब देते हैं, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक बहन से भी बात कर लें हम पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बात करें। दोनों भाइयों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम रहमतुल्लाह। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਖਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਡਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਚੋਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਲੋਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆਹ ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਹ ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਕੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੱਢਦਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜੀਵ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬੀਬੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ, 150 ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਗਰੀਬ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੜਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕੀ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਾਜੀ, ਬੜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੋਟ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ
ਚੌਕੀਦਾਰ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ। मुश्किल आएगी। बिल्कुल सही सिस्टर, बड़ी मेहरबानी। चौकीदार बारे च भी गल करने हैं। एक और कॉलर है मुंशी भाई, वो भी काफी देर रोड पे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अब्दाल साहब, अब तो आपकी जरूरत ही नहीं रही, सारी बातें हमारी बहन ने कर दी आपकी। जी वो बात ये जी, जनाब, जो दहशतगर्द होते हैं ना जी, वो इलेक्शन नहीं कराते। सही सही। और हुकूमत घटिया दहशतगर्दों की हो तो वो भी इलेक्शन को पसंद नहीं करते। अगर अवाम पुरअमन इलेक्शन की ख्वाहिश रखती हो तो घटिया दहशतगर्द हुकूमत अवाम पर झूठे केस करके जुल्म और तशद्दुद करने लग पड़ती है। सही बात है, बहुत झूठे केस करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और वो अच्छी हुकूमत नहीं करती। सही सही। बाकी इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि वो ना उन पे केस उनको किया गया। चले, केस फर्ज किया हो भी तो उनको ट्रायल करे और साबित करके उनको सीधा सीधा जेल भेज दे, अगर वो वाकई कोई उनके ऊपर केस है। अदालतों में इस तरह का कोई हमला करवाना, ये वाकई एक लग रहा है कि उनकी कोई प्लानिंग है। बात ये है जी कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अरशद शरीफ के कातिल हुकूमत ने पकड़े होते, सही बात है, और अगर इमरान खान पे जिन्होंने कातिलाना हमला करवाया है वो पकड़े होते जी, तो फिर तो हम कहते भाई हुकूमत अच्छी है, इस पे एतमाद कर दो। बिल्कुल सही। हमारी नजर में ये हुकूमत दहशतगर्दों के, हम एक शरीफ आदमी को दहशतगर्दों के कैसे हवाले कर दें? नहीं, बिल्कुल सही। उनको दहशतगर्दों को खुदा मानते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम, हमारा वो लीडर है, हमारा फर्ज बनता है हम अपने बाप की हिफाजत करें। बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल सही सर। हक बनता है जी। मुंशी भाई, 2-3 कॉलर्स आए और आपने देखा ये पूरी एक प्लानिंग, और अरशद शरीफ को तो कहा गया कि जी उनको तो यहाँ थ्रेट ही नहीं था, ये कहा गया कि उनको थ्रेट ही नहीं था। जी देखिए, पीटीआई इमरान खान है, ठीक है। पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा ना कि वो सियासत, वो जमहूरी तो वो है ही नहीं। जो पीटीआई, इमरान खान जो पीटीआई, अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो ये हिसाब लगाए बैठे पीटीआई खत्म। बात समझ, इसलिए इसको इस निगाह से देखिए। ले ले चले इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। मेरी तरफ से अली भाई को भी सलाम अलैकुम जी, पहुंच गया जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आपके प्रोग्राम को पसंद इसीलिए करता हूँ कि आप वन साइड बात करते नहीं हैं, बिल्कुल सभी की बात करते हैं और वाम की बात करते हैं। सही। पहली बात तो ये, और दूसरा ये बम धमाका, ये जो शुरू दहशतगर्दी हुई है, आपके प्रोग्राम ने मुर्सी भाई ने काफी दफा गौर कराने की कोशिश की है, लेकिन हमारे हुक्मरान के बात पता नहीं की कुछ भी जिन्होंने गरीबों को डालने लगे हैं। सही बात। कंट्रोल कर सकते थे अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन इनको फिक्र नहीं, आपको फिक्र हो सकती है। और दूसरा, हमारा जो पाकिस्तान पर मीडिया वो भी फिल्मों की तरफ लगा हुआ है, तो इलेक्शन घेर रहे हैं। इस तरफ कोई नहीं आता कि इनकी दहशतगर्दी के लिए कोई पकड़ी जाए। सही बात है, वो नहीं पकड़ी जाती, बिल्कुल सही। अपने वफाद के लिए लगे हुए हैं। सही तो सही। बस आप वाम की तर्जुमानी करते हैं और हमको पता मिलता है कि आपसे बातचीत जो होती है, बाकी तो ये बर्दाश्त नहीं करते, कॉल लेने नहीं पसंद करते, अपनी अपनी मर्जी के इन्होंने खाते खो रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। इनके गोदामों के गंदा भी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमी के लिए आटा रोटी कोई नहीं है, बस अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह, बिल्कुल सही भाई। हाँ जी, तो बस यही कहना। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, सियालकोट से आप शामिल हुए।
यकीनन गंदम इनके गोदामों में है। वो आपने देखा, वो एक अफसर की बेटी की शादी 92 करोड़ सलामियों वाले, ऐसी ऐसी शादियां भी वहां पे हो रही हैं। खाने पीने की, पैसे लुटाने की कोई इसमें कमी नहीं है, लेकिन जो बड़ी अक्सरियत है बेचारे वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी से महरूम है। तो एक ख्वाब देखा है उन्होंने एक इस बाबरे में कि शायद कोई भी हुकूमत आएगी वो हमारे हकूक के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत सोचेगी, लेकिन ये चीज़ है अभी तक अवाम में। वो किसी ने, कॉलर ने कहा ना कि वो 3 लोगों से आज़ादी हासिल करना, वो हमारे अरशद साहब ने, कि वो मुश्किल है, अंग्रेज़ों से आज़ादी हो गई, मिल गई, वो आसान था, लेकिन यकीनन इन लोगों से आज़ादी हासिल करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं, इन्होंने ऐसा एक कोई टॉनिक पिलाया हुआ है सारे इदारों में, इनके लोग और सारी चीज़ें, इनके सपोर्टर जो हैं वो सब कुछ हर जगह मौजूद है, और पैसा ऐसी चीज़ है कि जिससे आप सबको अपने जो भी नज़रिया, जब जो भी सोच है वो अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। इन्होंने तो फारूक ये भाई सोचता सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद से पाकिस्तान से जिंदा भाग की तरफ ले गए, यहाँ तक पहुंचा दी। जी हाँ, जी यहाँ हाँ, तक जी पहुंचा दिया। यानी अब आदमी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान से जिंदा भाग कि किस तरह से जिंदा भागा जाए उस तरफ हाँ। सोच रहा है। ओहो, तो ये हकीकत है, और लोग इस नहज पर आ गए हैं। एक आम तबका तो था ही था, एक अच्छा यानी सेटल लोग भी अभी सोचते हैं कि प्रॉपर्टीज का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, रुपया कहाँ जाके रुकेगा, डॉलर का क्या होगा। तो अब जी हाँ, लोग वहां से जिसको मौका है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मान ले सही। गए। कॉलर आपके साथ, कॉलर मैं ले लें। 2 कॉलर हैं, एक कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम। जी बट साहब आप होल्ड कीजिएगा। जी हसन साहब आप बोलते रहिए। मैं बिल्कुल मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जी जी सिर्फ मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जी। क्योंकि एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर आया करते थे नकवी साहब, उनको किसने नाराज कर दिया भाई? पता नहीं फिर किसने नाराज किया है, या आ, किधर गायब हैं वाकई उनका कोई, या तो खुद अब वो हुकूमत में आ गए। पहले वो फाइट करते थे हुकूमत में आने के लिए, तो शायद अब वो उनकी जमातें हुकूमत में हैं, तो वो खाम ही वो टक्कर लें हमसे। तो है वो दिलचस्प आदमी, अल्लाह मियां उनको सेहत दे। आमीन आमीन। मैंने कहा इनकी बात कर कर तो थक गए हाँ हाँ इमरान हाँ खान और हाँ, नहीं अल्लाह करे अगर वो सुन रहे हो तो जमजम आए जी, हमारे तो दरवाजे खोले हर किसी के लिए। मैंने वो दूसरे चैनल पे तो आते हैं, मैं कहा आपके प्रोग्राम में काफी रेगुलर थे, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद हमारी किसी बात में बुरा मना गए हो। मैं बोर हो गया। जी बिल्कुल सही, बस बिल्कुल शुक्रिया सही। बहुत बहुत, चलें, बहुत आप शुक्रिया। लोगों के इमाम ज़माना की विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी बहुत शुक्रिया। जी भट्ट साहब अब बोलिए सर, शुक्रिया होल्ड करने का। भाई मैं अली भाई की खिदमत में इस्लामिक पेश करता हूँ। जी मेहरबानी। नकवी साहब हमारे नहीं नाराज हुए आपसे, आपसे कोई नाराज होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनकी मसरूफियात हो, जी लेकिन वो हमारी चैनल की रौनक के आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक ठीक। और शुरका महफिल आप ही तशरीफ फरमा हैं, भाई अली हैं। बस मजबूरी बात करूं मैं जी प्लीज। तो वतनी अजीज में सियासी सूरत हाल के तनाजुर में चंद कलमात हैं। जी मुल्क में सियासी लीडरों की रसाकशी, कुशी नहीं कह सकता, रसाकशी, ठीक है। के सबब पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम दिखाई देता है। ये क्या चाहती हैं? जुदा हुकूमत है, ये क्या चाहती है मुल्क में? खाना जी की चाहती है, मुझे तो यही नजर आता है कि ये 100% खाना जी की चाहती है, क्योंकि इनके पास तो इक़्तिदार हासिल नहीं हो सकते ने, क्योंकि तो उन्होंने फैसला दे दिया हुआ है, ये जो इंसाफ वाली पार्टी है। तो अब ये कहते हैं हम क्या करें, क्या करें, इलेक्शन में या तो मार खाएंगे, वो भी खानी पड़ेगी हमें, तो बेहतर है कोई शरारतें करें, कोई फसाद फैले मुल्क में। और यही मेन चीज इनकी यही है, इन खुद साता लीडरों को हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए। गुर्बत के मारे अवाम चाहे पहाड़ में बकौल इनके सही बात। जो हुकूमत है, हालांकि इन लीडरों ने मुल्क के सरमाए को जी भर के लुटा है, इसमें कोई शक नहीं, फिर भी इनका जी नहीं भरा अभी तक। अल्लाह ताला जानता है कि गुर्बत के मारे लोगों से कोई इनको हमदर्दी नहीं, बस एक खोखले नारों से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और ये सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें और इंटरव्यू से लोगों को पागल बनाते हैं। इलेक्शन की तरफ तो तवज्जो देने को कहा जाए तो इनको मौत पड़ जाती है। इनको सिर्फ दो चीजों से प्यार है, मुल्क की दौलत और इक़्तिदार
صحیح تو صحیح شامل سویٹ موجودہ حکومت کے پاس کوئی انفارمیٹ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، جی اور آئیڈیالوجی نہیں ہے، منصوبہ بیانات کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس بہانے الیکشن نہ ہو کو صاف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. آخر یہ کب تک یہ الیکشن سے جان بچائیں گے؟ الیکشن دن نہ ب دن ہونے جو کی ہے صورت میں ملک میں خانہ جنگی ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ صحیح رحم کرے. صحیح. اللہ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت مہربانی. جی آپ کال ایک اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی یہ پتا کرنا تھا آج ڈیٹ کیا ہے، اسلامک کیا ڈیٹ ہے؟ اسلامک ڈیٹ اب 14 ہو گئی ہے جی اذان کے بعد، 14 شعبان. دوسرے جو وہ ہے ہدایت وہ 13 لکھ رہے ہیں، یہ کیا کنفیوژن ہے؟ وہ شاید اذان کے بعد انہوں نے اپڈیٹ نہیں کی، کیونکہ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے اذان ہوئی ہے تو شاید وہ بھی اپڈیٹ کر دیں. دیکھو جائیں گے 14 ابھی مطلب آج شب برات ہے، آج نہیں ہے، کل ہوگی رات کو. کل ہو. 15 کی شب میں ہوتی ہے نا، ٹھیک 15 کی شب میں. صحیح ہے سر، بہت مہربانی، اوکے. جزاک اللہ. جی مہربانی. تو جی موسی بھائی، سب کے اپنے اپنے خواہشات ہیں، لیکن سب اوور آل کوشش کریں کہ جو ملک کے لیے جو بہتر ہو جائے. کوئی یہ نہیں چاہتا Exactly. کہ خام خامی، جیسے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور وہ بھی نہیں اصل میں دیکھیں یہ طے اس ہے، سے جی جی جو پارٹی ہیڈز ہے نا وہ پارٹی ہے. آپ جی ایم کیو ایم کو لے جی لیں، الطاف حسین کو ہٹایا، جی ایم کیو ایم کا کیا حال ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. نواز شریف کو صحیح ہٹا دیں، صحیح مسلم لیگ نون ختم. عمران خان کو ہٹا دیں، پی ٹی آئی ختم. تو عمران جی خان ہاں کو پیشیوں پہ بلا کے راستے سے ہٹانا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پلاننگ ہوئی ہوگی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. ایک بات میں جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو راستے کا پتھر ہٹ جائے گا، پی ٹی آئی منتشر ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. جی مطلب یہ جی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ مطلب عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں اس ڈھنگ پہ نہیں ہیں. اب آپ اس کو سیاسی پارٹی کہیں یا نہ کہیں، یہاں پر سارا ووٹ ایک فیس کا ہے. اور اس مسلم کا لیگ نون اور اس نواز کا شریف کا ووٹ، بینیفیشری کون ہوگا، اس کا فائدہ کسے ہوگا مصیب بھائی، اگر مسلم لیگ پی نون کو، ٹوٹ جائے؟ مسلم لیگ نون کو، ہاں، مسلم لیگ نون کو، جی ہاں، مسلم لیگ نون کو ٹھیک ہے. زیادہ تو یہی ہوگا اور پارٹی کو بھی ہوگا. جی ہاں، ایک عام تفتیش کا پہلے یہی قدم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے. فائدہ کس تو کو؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑی ایک حماقت ہوگی، سازش ہوگی کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ملک میں دوبارہ اس قسم کا کھیل کھیلا جائے. آپ سیاسی طور پہ جوڑ توڑ کریں، جو بھی کریں، ایک الیکشن سیاست کے ہو تو اندر کرے کوشش نا، کریں ایک دوسرے کو شکست دیں، سیاست ہو تو پر کرے سیاست نا. نہیں. سیاست نہیں ہے نا یہاں. تو یہ ہے کہ جو ہینڈل نہیں ہو رہا اس کو صاف کر دو. جی ہاں، یہ یہاں تو تو یہ ہے نا، بلکہ ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم ان لوگوں نے کی تھی، اور بلکہ انہوں نے حصے بانٹ لیے تھے. یہ تو پی ٹی آئی آج جی ہاں، دھمکی کہاں سے، پتہ نہیں ان کا سارا وہ جیسے نا کباب میں ہڈی بن گئی ہے سارے پی ٹی آئی کی آمد جو ہے. ورنہ سندھ جی ہاں، میں وہ اب وہ بلاول صاحب کا آج بیان ہے نا کہ وہ سیلاب زدگان کا جو حصہ ہے وہ ہمیں بھی دو. تو ہاں ہمیں وہ بھی دو. باہر جو کانفرنس ہوئی تھی یا یہ جو تھوڑی بہت ایڈ ملی ہے، تو اس میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ دو. ورنہ ان کو اگر سیلاب زدگان کی اتنی فکر ہے تو تھوڑے اپنے دورے گھٹا کے اگر کسی کو دے دیتے وہاں پہ جو آدھا سندھ ڈوبا نہیں، ہوا ہے، تو ان کو کہتے ہاں اور جو پیسہ پاکستان سے بنایا ہوا ہے اس میں سے دے دیں تھوڑا سا. ان میں سے بھی دے دیں. جی ہاں، اس سندھ میں سے دے حکومت دیں نا. میں وہ کیا انہی وہاں کا تو پہ. پیسہ ہے، عوام کا تو پیسہ ہے وہ. جی ہاں، لیکن وہ سندھ ہاؤس کے لیے ہے نا سر، وہ سندھ عوام کے لیے نہیں ہے. سندھ ہاؤس میں اگر کوئی لوگ خریدنے ہیں منڈی نا. لگی، نیا کوئی میلہ مویشیاں لگا، تو پھر وہ اس کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے پھر تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسی تو نہیں بیٹھ جاتے، وہ چودھری شجاعت کے پاس آ کے بیٹھ کے اور وہ خط پہنچ جاتا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے. تو یہ اس کے لیے یہ پیسہ ہے، عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے. کالر ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاروق بھائی، آپ کو اور علی بھائی کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا آداب السلام. جی میں آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ میں نے مس کر دیا ہے، کوئی تو بات نہیں. کوشش یہی ہوتی ہے آپ دونوں بھائیوں کو سنوں، اور آپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں میں وش کرتا ہوں کہ آپ ویکینڈ پر بھی دونوں بھائی کو اپنا پروگرام کریں، کیونکہ ڈیورنگ دا ویک لوگ بزی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شام کو گھر آ جاتے ہیں، مگر آپ کے جو پروگرام ہیں ان میں حقیقت پر باتیں مبنی ہوتی ہے، حقیقت بیان کرتے ہیں،
जिसको क्रिटिसाइज करना हो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कट द स्टोरी शॉर्ट, जी अफसोस होता है जब भी आप टीवी ऑन करें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। आज जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ कितने दुख की बात है, मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं, कुछ को अगवा किया जा रहा है, कुछ भूख से मर रहे हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। फारूक भाई मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, आप यकीन करें अगर इनको पता चले कि इंडिया मोदी को कहें कि पाकिस्तान पर हमला कर दे और इनकी पीडीएम है जो कुछ भी से बोलते हैं, जो इनका इत्तेहाद है ये कायम रहेगा आइंदा 5-10 सालों के लिए, तो ये कभी देरी नहीं करेंगे। इंडिया को कहेंगे कि हमला कर दो, एक ड्रामा रचा दो। हम बात को मुख्तार करता हूँ कि बिलावल साहब फरमाते हैं कि कुछ हमें भी दो, और उनके मोहतरम वालिद साहब एहतराम के साथ फरमा रहे थे कल एक इंटरव्यू में कि बिलावल अपने खर्चे से इधर उधर जाता है। भाई उसने कौन सा काम किया, किस फैक्ट्री में काम किया, किस काम करता था, अगर वो अपने खर्चे से इधर उधर जाता है। भाई पाकिस्तान का लूटा हुआ माल। मुझे अफसोस इस चीज का होता है फारूक भाई, आप इस पर रोशनी दोनों भाई डालें। ये जो ह्यूमन राइट के अदारे हैं, क्या ये IMF को क्यों नहीं कहते, पाकिस्तानी IMF को क्यों नहीं कहते कि गरीबों पर बोझ डालने के बजाय आप इनके बैंकों से किस्तें वसूल सर करें। इसी वजह से तो आज भी उन्होंने IMF ने किस्त ही नहीं दे रहे ना, वो इन लोगों के हाथ में पैसा दे ही नहीं रहे। इसीलिए उनको कहें कि प्लीज, उन्होंने आगाज कर दी है, उन्होंने कहा है कि हमें सब लोग अपने एहसास बताओ। जी हाँ, उनको कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने पेमेंट देने के लिए दस्तखत किए हैं उनके बैंकों से जो उनके एहसास बैरून ममालिक है उससे किस्त ले, गरीबों पर ना बोझ डाले। सही बात। मुल्क को इन्होंने लोग भूख से मर रहे हैं। आप अगर टीवी के सारे चैनल देखें तो लोग रोते हैं, कहते हैं हम किधर जाए, अपने बच्चों को प्रोफिट कर रहे हैं। 10 माह में इन्होंने ये दिया। वो लड़की आती है मोहतरमा मरियम सफदर, वो बस मेरे वालिद साहब को मुझे सीने में दर्द हो जाता है किसी को तकलीफ में देखें। भाई आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके इलाके में लोग बच्चियों को प्रोफिट कर रहे हैं। मुझे जबान में ताकत नहीं आती कि ये बात कहूँ, हम खुद बच्चों वाले लोग हैं। क्या कोई जुल्म की भी हद होती है फारूक भाई? आप कुछ कहें। सही है जी। को चाहिए कि इनके पैसों से पैसा ले, गरीब पर ना बोझ डाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन बात करें। जी। मैं बात ये करनी सी, मेरा सूट अगर कटिया गया, जी जी। मैं ये करनी सी भी ये जिन्ने बैठे आ पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਫਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਫਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਕੀ ਫਲਾਉਣੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕੀ ਫਲਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਾਕੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ। सही ਉਹਨਾਂ है। ਨੂੰ ਫਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ ਆ, ਗੈਸ ਫਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਫਰੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੰਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਓ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੋਟ ਦੇਗਾ? ठीक ठीक सिस्टर, पॉइंट आ गया ਤੁਹਾਡਾ। टाइम खत्म हो रहा है। तो सही है, इलेक्शन जो है चले, वो इन सारे मामलात का हल नहीं है। जाहिर है जो भी आएगा, फर्ज किया इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कल आके वो यही कहेगा जी अभी हमें 2-3 साल और चाहिए ये सारा ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी 4-5 साल के लिए किसी भी हुकूमत को एक फ्रेश मैंडेट मिले सूबों में, वफाक में, और वो अगर आवाम के लिए कुछ करना चाहे तो वो करें। लेकिन ये जो एक नया एक आप देखें वो कैसा एक इत्तेहाद है कि जिसमें, जिसे कहते हैं ना, अजीब एक इनकी कंपोजिशन है। वो एक नाम रखा हुआ है अचार मिक्स टाइप जो है, जिसमें हर किस्म का जो उसमें रखा हुआ है। तो ये ऐसे इन्होंने क्या आवाम की खिदमत की है पाकिस्तान की। काश अगर ये
वाकई इसमें कोई हुनर था, तो साल थोड़ा नहीं था आवाम की खिदमत उनके आवाम पास की कि खिदमत करने इसमें से कौन आया था? ये तो अपने केसेस से आए थे। बचने के लिए आए थे कि अपने जो इनके ऊपर केसेस थे वो सब खत्म हो जाएं और एक नए सिरे से दोबारा लूट मार के बाजार गर्म हो जाए। आप देख ले, इसमें बिल्कुल शख्सियात सही। देखे ना जरा, फजलुर रहमान जी साहब और हाँ, फलाने फलाने शख्सियात देखे जरा। बिल्कुल सही। और अच्छा, अब खैर ऐसा दौर आ चुका है, अब जो साबका जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उनका भी एक आध बयान आया कि इमरान खान को उन्होंने कोई मुकम्मल सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। 2-3 जो उनके मामलात इश्यूज आए थे, जो कुछ शायद उनकी बनी काला मकान की जो मनी ट्रेल थी या कुछ और पहलू थे, उस पे उन्होंने सादिक अमीन करार दिया। और फिर कहा कि नवाज शरीफ को नायल करने में जनरल फैज ने उनको कोई दबाव नहीं डाला था। तो ये कुछ बयानात साकिब निसार के आए हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि दबाव के बाद, चाहे साहब कोई जज हो, चाहे साहब कोई आर्मी चीफ हो, अगर किसी ने कोई भी कौमी मफाद के खिलाफ कुछ भी किया है और अगर इसने भी गलत किया था, तो इसका भी सामने आना चाहिए। और अब ये दौर नहीं रहा कि आप करके बस गुजर जाएं और चले जाएं और लोग आपका पीछे ना छोड़ें। लोग आपको, वो आपने वो देखा बाजवा साहब को दुबई इशारे के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल भी पकड़ लिया और वो वायरल होगी तस्वीर के, देखें। ये हमारा हर आइन कानून तोड़ने की धज्जियां उड़ाने वाले, वहां एक छोटा सा इशारा तोड़ने के काबिल नहीं है ये लोग, बाहर जाएं तो। जी हाँ, बिल्कुल सही तो बात ये है। सारी चीजें अब हमारी आवाम छोड़ने वाली नहीं है, जब ये सोशल मीडिया या नई जो पौध है, नई नस्ल 30 साल से, अब फर्ज किया जो 90s में पैदा हुआ है मुसीब भाई, उन्होंने तो ये नूरा कुश्ती देखी होगी। नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी में क्या था, ये पेट फाड़ दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। तो ये नई नस्ल जो है वो 30 साल से ये देख रही थी। उन्होंने एक ऑप्शन देखा कि जी इमरान खान एक आया, वो भी कह रहा है कि एहतसाब होना चाहिए और चोरी और डाकू जो है उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना, तो इस वजह से उनके साथ वो हो रही है। और मैं बार बार इमरान खान साहब की एक गलती रही है, एक गलती रही जी इमरान जी साहब की मेन, जिस वक्त जब वो कहते हैं कि जी जी बाजवा साहब ने काम नहीं करने दिया, उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए था, उसी वक्त। जी बिल्कुल जी। अगर ये उस वक्त रिजाइन करते तो आज इमरान खान हकीकी हीरो बनते। जो लोग उनकी गलतियां गिनाते हैं ना, वो मसला यही है सारा कि वो जो रिजाइन करने का वक्त था उस वक्त इख्तिदार से चिमटे रहे, ये उन्होंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, सियासी गलती भी सही की, बात, इखलाकी गलती सही भी की बात। उन्होंने। नहीं नहीं, उनकी तो गलतियों की अगर शुरू कर दे, हमें 2 घंटे और चाहिए, प्रोग्राम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। जो उनके ब्लंडर्स थे कि पहले 100 जी हाँ, दिन, या उन्होंने बाजवा साहब भी की कहने पे असद उमर को हटाया, हफीज शेख की एंट्री हुई, शौकत तरीन की एंट्री हुई, और ये जो इस वक्त आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, अगर वो बात सही है कि उन्होंने कुछ उनकी एहलिया और उनकी सहेली जो फरा गोगी साहिबा, उनके कुछ करप्शन के मामला जो हैं वो इमरान खान को बताए, तो इसके बाद ये मौजूदा आर्मी चीफ जो उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, उनकी अनबन हुई है। तो अगर ये बात सही है, तो इस पे तो इमरान खान को करना चाहिए था कि अगर कोई करप्शन उनकी वाइफ की आड़ में अगर वो कर रही हैं, तो जहां उन्होंने पहले एक लेवल बहुत से पे ऐसे मामला एक कदम उठाए लेवल थे, पे तो जाके उनको करप्शन फारिग कर देना करप्शन चाहिए। तस्लीम ही नहीं की जाती ना। एक लेवल पे सही जाके बात करप्शन तो करप्शन तस्लीम ही नहीं किया जाता कि वो तो है, चलता है। सही बात है, सही बात है। मैं कॉल ले लूं एक और। अस्सलाम चलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? जी रियाज बोल रहा हूँ विंजर से। जी न्याज साहब बोलिए सर, मेहरबानी। हाँ जी, देखिए इमरान खान का जो माइंड था अकाउंटेबिलिटी का, जी जी ये 3 इदारों के लिए खतरनाक था हाँ और उनमें से कोई भी नहीं चाह रहा था। सबसे पहले तो पॉलिटिशियन, दूसरे नंबर पर ब्यूरोक्रेसी। अब सबको पता चल गया था बिहाइंड द सीन के आर्मी, और ये जो रजीम चेंज है इसके पीछे हमें पता है कि नवाज शरीफ ने अमेरिका में अप्रोच की। ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत गई, उसके बाद वहाँ जो न्यू प्रेसिडेंट आया, ये नवाज शरीफ ने वहाँ लॉबिंग की। ठीक है। ये जो इनके नवाज शरीफ के असासे पड़े हैं, नवाज शरीफ के असासे दुनिया के हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इनकी ऑफशोर कंपनी आपको लंदन में भी मिल जाएंगी, अमेरिका में मिल जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगी, हर कंट्री में इनके कारोबार हैं। लंदन के अंदर सेंट जेम्स पैलेस होटल आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान का एसेट था।
इसका एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। अब वो होटल जो है वो बेच दिया गया है और ये टास्क जनाब पूरा किया गया है आपका शहबाज शरीफ के जरिए। ठीक है। ये के जहाज जो है वो तो इस खानदान ने बेचे। अच्छा, ठीक। अब बात करते हैं नवाज शरीफ का जितने ये आपका खदशा है या आपको कोई आपके मुसद्दका कोई इसमें कोई इतलात हैं या वैसे ही इनके ऊपर से एतबार ही नहीं रहा तो ये सारा कुछ मलबा इनके ऊपर ही डाल रहे हैं? ये है जी। तो आप देखो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप उठा के देखो। सही है। लैंड ग्रैबिंग में ये आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब डॉलर चोरी में इन्वॉल्व है। अच्छा। कर्ज उतारो मुल्क संभालो। ठीक है। उसके पीछे कहानी आपको मिलेगी डॉलर की स्मगलिंग की। ठीक है। और ये कराची के अंदर एक बहुत बड़े होते थे जो डॉलर को डील करते थे। ठीक है। उनके जरिए। ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये 100 बंदे लेके जाते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर के जहाज जाते थे मियां नवाज शरीफ के। सही है। 100 फैमिली मेंबर और उनके साथ वीआईपी गेट से जिसका कोई चेक नहीं करता उसके अंदर डॉलर जाते हैं। अब उसका एविडेंस कहाँ से कोई भी नहीं कर सकता। चले नियाज साहब कोई हल बता दें, आखिरी मिनट हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, हल बता दें। चले जो हुआ वो तो ठीक है, आपने जो बताया। हर साल हर जो वही है कि इलेक्शन सही और अकाउंटेबिलिटी सर आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो बिजली के गले और ये करेगा कौन सर? अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? जी वही बात आ गई। आर्मी को भी ये जनाब मुसल्लक नवाज गालियां देती है, जजों को ये गालियां देती है, इमरान खान को ये गालियां देती है। अच्छा, इमरान खान के गले में इमरान खान के गले में छोटी सी घंटी बांधी हुई है तो तोशा खाया रेफरेंस। सही। अच्छा, मरियम बेबी वो BMW का क्यों नहीं बताती? ठीक है। जो नवाज शरीफ सारी दुनिया से गाड़ियां लेके आता था, वो आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों को कोई जिक्र नहीं किया जाता। ठीक है। लैंड ग्रैबिंग का कोई जिक्र नहीं किया जाता। चले अगर इनके ऊपर भी है तो ट्रांसपेरेंटली खान साहब के ऊपर भी है। वैसे तो वो कहते हैं उन्होंने प्रोसेस सारे पूरे किए, लेकिन अगर है तो ठीक है। हर किसी की जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी, मैं आपको एक तोहफा देता हूँ। सही है। आप अखलाकी तौर पे आप उसको बेच दें, कुछ कर दें, तो उसने तो फिर उसका चैरिटी के तौर पे यूज किया। ठीक है। कहाँ यूज रही वो पैसे, कहाँ यूज है? सही है। आपको सोर्स पता चल गया। ठीक, सोर्स पता चल गया। बहुत शुक्रिया सर, टाइम शॉर्ट है, बहुत मेहरबानी। आखिर में जी, क्योंकि आपके मेरे तरफ से आपके लोग सुन रहे होंगे, जी जी, सारे लोग। सोर्स ऑफ चीज कहाँ से आई, किसके पास आई, कहाँ गई? उसने तोशा खाना बेच लिया, चीज उसकी थी, ठीक है, बेच ली। ठीक है। अब बात डिक्लेयर है या नहीं है? चले आप पढ़े जाए। अगर इस पे ये असूल आप साबित करते हो तो फिर नवाज शरीफ पे क्यों नहीं, आसिफ अली जरदारी पे क्यों नहीं, शहबाज शरीफ पे कोई नहीं, मौलाना फजल रहमान पे क्यों नहीं, पे क्यों नहीं? इक्वलिटी लॉ है टू अप्लाई। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें ये जो है ना कि वो फलां क्यों नहीं, इसमें तो हम ये तवक्को रखते हैं जो मदीना की रियासत भी बनाने वाले हैं तो वो खुद से आगाज करें अपने आप के एहतसाब का। अगर तो कोई घोटाला नहीं है तो जैसे कल इमरान खान खुद कह रहे हैं कि ये तोशाखाना केस ये पब्लिक में इसकी हेयरिंग जो है वो टीवी पे दिखाई जाए तो अच्छी बात है। इसका मतलब है उन्होंने कोई ऐसा काम गलत नहीं किया, जो भी उसकी कागजी कार्रवाई है वो पूरी की है, इसी वजह से वो कह रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो मामला बेहतर लग रहा है। लेकिन ये है कि अगर क्योंकि दूसरों का नहीं हुआ तो इनका भी ना हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक पाकिस्तान के लिए जो एक जो है ना मेयार, ये बेहतर नहीं है कि जी मैं चोर हूं तो फलां भी तो चोर है, तो मैं अपनी चोरी का हिसाब दूं, दूसरा अपनी चोरी का हिसाब दे, ताकि मुल्क का लूटा हुआ माल जिसने भी लूटा है वो वापस आए। तो मुसीब भाई आखिर में क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का दौर है और ये चीजें छुपेंगी नहीं, क्योंकि अब हर जगह का मीडिया तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ही चैनल जो है वो तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक में जा रहा है,
تو ہم پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ بیلنس گفتگو کریں، مگر اگر کسی پلڑے میں جرائم زیادہ ہیں تو اس کا جرائم زیادہ ذکر کیے جائیں گے. اس میں لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی حمایت کر رہے ہیں، کسی مخالفت، تو ایسا نہیں ہے. ہم بات وہ کر رہے ہیں جو سامنے سے ہو رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کوئی بھی خنجر مارے گا تو وہ پاکستان میں دفاع کریں گے. ایک جیب کترا اور ایک بینک لوٹنے والا وہ برابر، اس کو ہم بیلنس نہیں کر سکتے نا. برابر نہیں ہو جب ان سکتا کی نا. چوری بیلنس نہیں ہے، جو ان کی چوری برابر بالکل کی ایسا نہیں، تو ہم کیسے برابر کریں؟ ہم کیسے بیلنس کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ بہرحال بس صحیح ہے، صحیح. اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ، پھر ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آغا سید علی موسی ناظرین ہمارے ساتھ ہر سوموار کو ہوتے ہیں، اور آپ نے ایوننگ